Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinay and I'm back. इस वीडियो में I'm going to explain a type of question जो हर साल JEE मेंस में आता है और हर साल स्टूडेंट्स इसमें नेगेटिव मार्क्स या फिर they lose out on potential 4 marks in the exam. Just because of an assumption जो NTA makes in the question, जो assumption स्टूडेंट्स को जनरली नहीं पता होता है या नहीं स्ट्राइक होता है. ठीक है, so let's take a look and it's very important for your JEE mains. Guaranteed this type of question will come in your JEE mains as well. One of the shifts in JEE mains 2024 या multiple shifts में भी आ सकता है ये type का question. So make sure कि अगर ये question तुम्हारे shift में आया, so you know what assumption the NTA expects you to make. Let's take a look. तो इस तरीके से मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, ऑल ऑफ द सेम टाइप जो JEE 2023 में आए थे, JEE 2020 मेंस 2022 में भी आए थे एंड प्रीवियस ईयर्स में भी आए हैं. आई हैव जस्ट चोजन फ्रॉम 2023 एंड 2022 टू शो यू एन एग्जांपल. लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट अ क्वेश्चन. अगर ये क्वेश्चन देखो, जैसे एल्यूमिनियम वायर लेंथ स्ट्रेच बाय 0.4%, परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस विल बी हाउ मच. ये वाला क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल वायर इज डबल्ड, कितना परसेंटेज चेंज होगा रेजिस्टेंस में. ऑल द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है. ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं who attempt this question and get it wrong. One is जो बिल्कुल नहीं सोचते हैं and they say कि resistance is rho L by A standard formula. So obviously resistance is proportional to length. तो अगर length को 0.4% से change किया तो resistance भी 0.4% से change होगा. गलत. You will get negative if this is an MCQ. You will lose out on marks if it's a numerical problem. I'll tell you why. But let me first tell you कि दूसरे type of student जो होते हैं what they do. They overthink and they actually think correctly कि जो एरिया है, अगर लेंथ को स्ट्रेच किया तो एरिया भी चेंज होगा. कैसे चेंज होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर है अपने सिलेबस में, वहां पर आपने पढ़ा है पॉइजन्स रेशियो के हिसाब से चेंज होता है. करेक्ट. फॉर स्मॉल चेंजेस द चेंज इन द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम व्हेन यू स्ट्रेच अ वायर बाय अ स्मॉल अमाउंट, the small fractional change in volume is given by this, where sigma is the Poisson's ratio. So बहुत सारे students who have studied the properties of matter chapter properly, वो लोग सोचते हैं कि यार यहाँ पे तो Poisson's ratio नहीं दिया गया है, तो शायद इसका मतलब the area is not changing, ये मान लिया है सिर्फ length change हो रहा है. तो even they say कि शायद सिर्फ resistance is proportional है and they get it wrong. So NTA makes the assumption that the volume of the wire is a constant. Now this assumption is very dubious. Dubious मतलब बहुत ही गड़बड़ assumption है, because we know कि it depends on the Poisson's ratio. Only if sigma is equal to half तो ही volume change 0 होगा. ठीक है, बट NTA हर साल ऐसे क्वेश्चन देता है, उसमें it makes the assumption without saying, without mentioning anything, that the volume of the wire remains constant if you stretch it. In reality that is wrong. अगर JEE Advanced में इस तरह का क्वेश्चन आया, they will give you the Poisson's ratio or they will tell you specifically that the volume remains constant. फॉर एग्जाम्पल कॉपर वायर का पॉइजन रेशियो या एल्यूमिनियम का ही ले लो, अराउंड 0.3 होता है. सो 0.3 अगर रखोगे तो यहाँ पे 1 minus 0.6, so 0.4 times, so change fractional change in volume will be 0.4 times the fractional change in length, which is not negligible. You cannot simply neglect the fractional change in volume. However, अगर इस तरीके का क्वेश्चन JEE मेंस में आया तुम्हारे शिफ्ट में, you have to take the assumption that the volume remains a constant. So if volume remains a constant, मतलब area into length is a constant, so area is inversely proportional to length, so therefore the resistance will become proportional to length squared, because area is inversely proportional to length. ठीक है, अब ये चीज से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एंड उससे आंसर जो NTA एक्सपेक्ट करता है वो करेक्ट आ जाएगा. ठीक है, सो लेट्स क्विकली डू वन ऑफ दीज क्वेश्चंस. जैसे अगर मैंने ये किया, एल्यूमिनियम वायर लेंथ स्ट्रेच बाय 0.4%, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी व्हाट. नाउ दैट वी नो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, फॉर स्मॉल चेंजेस द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी दिस. ये तो अपने को पता है, एरर मेजरमेंट या बेसिक कैलकुलस से पता है. ठीक है, सो आंसर वुड बी 0.8%, ट्वाइस. ठीक है, अगर ये वाला देखो, लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल वायर इज डबल, बट डबल्ड इज नॉट स्मॉल, सो डोंट यूज दिस फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन. बेसिक से करो. अगर लेंथ को डबल कर दिया, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, मतलब 300% इज द आंसर. अगर ये वाला क्वेश्चन देखो, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5 ohms, इफ इट स्ट्रेच टू 5 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, रेजिस्टेंस अभी न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा. अगर लेंथ को 5 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस 25 टाइम्स हो जाएगा. करेक्ट, तो हो गया 25 into 5 is 125 ohms is your answer. And let's do the first question. JEE 2023 का copper wire stretched to increase its length by 20%. अगर लेंथ 20% चेंज कर दिया, so resistance will change by how much? 20% लेंथ मतलब अभी न्यू लेंथ कितना है? That is 1.2 times. करेक्ट, 20% से इंक्रीज किया है, so मतलब it is 1.2 times the original length. So resistance is 1.44, 1.2 का square, 1.44 times the original length. So change in resistance is what? 0.44 times the original resistance.
सो देयरफॉर द चेंज इन परसेंटेज चेंज इज 44%। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ही ओरल है। अभी मैंने तुम्हारे सामने 4 क्वेश्चन, कितना टाइम लगा होगा, 2 मिनट में 4 क्वेश्चन कर लिया। तो एज लॉन्ग एज यू नो द अजम्पशन, इफ यू नो द अजम्पशन दिस इज फ्री मार्क्स, इफ यू डोंट नो इट इज नेगेटिव मार्क्स, इस तरीके से है। ठीक है, सो मेक श्योर कि यू डू नॉट गेट स्कैम्ड इन योर जेईई मेंस शिफ्ट 2024 वाले शिफ्ट में। यू डू नॉट मेक द रॉन्ग अजम्पशंस दैट एनटीए डज नॉट एक्सपेक्ट यू टू। मेक श्योर कि तुमको पता है क्या अजम्पशन करना है। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू एट द टॉप, गुड नाइट।